Welcome back to Smart Tech. So in last video we were discussing about the priorities of environmental geosciences. So we discussed around 44-45 questions. Now we are going to discuss questions onwards. So we will finish this PYQ thing, PYQ on environmental geosciences topic unit 4 in this video. Okay, so let's start. We already have discussed syllabus. So now these questions are more recent ones. I think 2024 cycle and 23. Let's start. So this is the question. Arrange the following soil horizons. Okay, from top to bottom. So we have to arrange the soil horizons from top to bottom. So here we have OA, EAB, OI. Okay. So we have OI horizon. We know that is topmost organic, layer composed of slightly decomposed organic matter. So I stands for slightly decomposed. So this is going to first. Then we know that the OA will come. OA means organic horizon, but highly decomposed organic matter. Okay, means कि here the structure of organic matters are recognized in OI, but in OA the structure of organic matter are not recognized. You can recognize. Okay, so OA means कि E or A. EA now okay. E is C. C is common. C A horizon we know. Then we have B horizon. OE, OE, C, and after that we have E horizon, elevated ridged horizon below A horizon. So we have E horizon. So E A C D D. And in last we have B horizon. That is horizon where material leads from the elevation horizon. In few questions in last video in one question we learned about the elevation horizon, that is this one is this where the where the materials leads from the A horizon reached here accumulate here. Okay, so answer is E A C D D. So this is the little bit details, and this is the meta graph. Like loose leaves, organic debris largely decomposed. Void organic debris partially decomposed. A dark color horizon mixed with minerals organic matter. Each light color horizon marked with removal of clay particles organic matter. Maximum accumulation of silicate clay materials of sesquicoid oxides and organic matter in B horizon. C is weather pattern material, and this is consolidated bedrock. Sometimes we say it's D bedrock. Next, okay, wind parallel blows parallel to isobar alcohol. Wind parallel. This is the isobar. Okay, means ki suppose isobar means lines connecting the equal pressure. And 530 millibar. Okay, this one is 520 millibar, and this one is 510 millibar. Suppose so parallel to isobar. If the wind is also blowing like this, that's why if this is the isobar, you know 530 and 510. So wind is blowing like this direction or this way, whatever parallel. Okay. So which winds blow? We know that winds blow mostly from you know from lower to you know winds blow mostly from through this you know, isobar, perpendicular. Mostly winds blow from perpendicular, but in reality we don't blow in perpendicular because then friction forces there, Coriolis force is there, but we know. But in which case the winds blow is like this, when the when Coriolis force and pressure gradient force, this forms gradient, this 510 500, this is called gradient. In ski slope, a kind of slope now. This one 530 is high, 520 low, so this will be like slope. So this is called pressure gradient, you know slope, you know
and the force which acts is pressure gradient force. So when PGF and Coriolis force, become perpendicular to each other, the wind blow in, parallel to isobar. So which wind? Geostrophic wind. Wind blow parallel to isobar. ये बहते हैं आइसोबर, जैसे पीजीएफ का प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मीन्स की लो प्रेशर इधर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, so and this is Coriolis force. Okay. So wind will tend to blow from high pressure to towards low pressure. Is 205. This is the dice. But Coriolis force acts sometimes the winds move like this. But geostrophic winds are those winds which blows parallel to isobars. So geostrophic wind mostly occurs at the ground level, no, because then we have the friction force and all those things are there. So mostly the geostrophic winds occurs at a very high altitude, around 8 to 16 kilometers above the ground. Okay. Then you have see the other option. You have gradient option, gradient wind. Gradient wind is roughly follow the isobar. Okay, isobar. The thing I showed like this is isobar. This is also isobar. 105 and 103. So wind will blow like this. This is the gradient wind, but normally it doesn't happen because Coriolis force acts there. Okay. Then we have frictional wind. Friction disturbs the geostrophic balance. So wind cross the isobar at angle towards low pressure rather than flowing parallel to isobar. ओके, फ्रिक्शन के कारण एंगल बनता है कुछ कुछ। और लोकल विंड तो हमें पता है कि जो जनरली लोकल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बहता है। किसी एरिया में सपोज कि ज़्यादा धूप हो गई, गर्म हो गया, या वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी से, ठीक है, ये गर्म हो गया तो वाटर बॉडी से हवा इसकी तरफ चलेगी, तो इससे तो लोकल विंड्स में आते हैं। तो याद रखना है कि ग्रेडियंट विंड जनरली, ठीक है, ऐसे सीधे बहना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो क्योंकि इसकी और सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है, इस कारण से हवा है। और जब ये कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो जो विंड्स है वो पैरेलल बहेंगी किसके? आइसोबार के। ठीक है, नेक्स्ट, ये थोड़ा बहुत वही बात है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, नेक्स्ट, कि पेरी हिलियन इशू। तो अर्थ पेरी मतलब क्या पड़ेगा? नजदीक, अर्थ कम क्लोजर। अब हिल मतलब अर्थ दूर चला जाता है अर्थ। तो ये पहले भी ये सवाल आ चुके हैं, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, सो दैट्स वाई पीआईक्यू डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 2 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। हाँ, अगर आपको इतना ही पता है तो यू विल कम टू द आंसर। ठीक है, सी का 1 अल्बिडो पता है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है। एंड आइसोथर्म्स क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर दिखाते हैं, मतलब आइसोथर्म्स मतलब लाइन ज्वाइनिंग द एरियाज हैविंग इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो ये थोड़ा बहुत डिटेल्स दिए, और ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर लिया ये अपेरियन पेरिंग प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पहले और भी इससे पुराने सवाल जो थे इसी टॉपिक पे उसमें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियर फ्यूल मिलर? इसमें से कौन सा है? तो ये सवाल ऐसा है कि अगर आप पढ़ के गए, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, तो बेटर कि पता रखें। आंसर क्या है? पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड क्या है? एक प्राइमरी यूरेनियम ओर मिनरल है। ठीक है, मतलब एक वेराइटी है यूरानाइट का। ठीक है, एक वेराइटी है यूरानाइट, क्या है? ओर है। ठीक है, यूरेनिनाइट। ठीक है, यूरेनियम का ओर है, और इसी का क्या होता है? एक वेराइटी है, इसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। ठीक है, इसको पिच ब्लेंड, तो ये मेन सोर्स है यूरेनियम का। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल की यूज किया जाता है। इसमें लगभग 50 to 80% न्यूक्लियर ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद रूटाइल क्या है? अभी बाकी ऑप्शन जानते हैं, अब आगे सारे में आ जाए। तो ये क्या मिनरल है? प्राइमरी इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या O2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, वैल्यूएबल है टाइटेनियम ओर की तरह। ठीक है, बट ये न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम नहीं करता। उसके बाद क्या है? एनर्गी एनार्गाइट। ठीक है, एनार्गाइट क्या है? एनार्गाइट कॉपर आर्सेनिक सल्फाइड मिनरल। ठीक है,
कॉपर ओर में ये माइन किया जाता है, पर्टिकुलर रीजन से कोई। उसके बाद ऑगाइट। ऑगाइट एक कॉमन पायरोक्सिन मिनरल है, ठीक है, जो कि मैफिक एग्नियस रॉक्स में एक बसाल्ट गैब्रो के साथ पाया जाता है, लेकिन इसका भी कोई न्यूक्लियर से मतलब नहीं है। तो दूसरे और जो इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियर फ्यूल मिनरल्स है वो कौन सा है? तो एक यूरानाइट हो गया, पीजीडेंट हो गया, ठीक है। तो उसका है कार्नो कार्नोटाइट। ये कार्नो बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट नाम देता है, सिर्फ केमिकल फॉर्मूला देने लगे तो गलती खा गया नहीं से, ठीक है। उसके बाद है कॉफी नाइट। कॉफी नाइट पीने वाला कॉफी नहीं, ये रेडिएशन उससे भरा हुआ कॉफी है, ठीक है। थोरियोनाइट, थोरियन नाइट, थ्रियनाइट, थोरियनाइट एंड मोनाज मोनाजाइट। मोनाजाइट, ठीक है। ये थोरियम फ्यूल साइकिल का है, थोरियनाइट। इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आंसर था पिछले ऐसा देख, ऐसा देखने में खतरनाक लग रहा है। तो ये लिस्ट दिया हुआ आपसे, कौन कौन सा यूरेनाइट होता है, फिश ब्लेंड होता है, ये ई यूरेनियम से काफी नाइट होता है का, ये कार्नोटाइट होता है, ठीक है। ट्यूयम यूनाइट होता है, ऑटू नाइट होता है, ठीक है। टर्बर नाइट होता है, ब्रांड नाइट नहीं जानते ना, नेक्स्ट नेट कॉमन किया कि नीचे के दो तीन ही सब दे दे ऑप्शन। उसका इसमें जो थोरियम होता है वो मोनाजाइट होता है, थोरियनाइट होता है, थोराइट होता है, नाइट हो गया, पता है इस बार यूरेनियम पूछा, अगले साल थोरियम का पूछ, हु नोज। तो बेटर कि इसको पूरी तरह से रटना नहीं है, बट पता होना चाहिए कि हाँ आप सामने से दिखे तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाओ, वो होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो डोल्ड्रम क्या है? तो डोल्ड्रम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ठीक है। डोल्ड्रम मीनिंग ये होता है ना, मतलब जहाँ पे आईटीसीजेड होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। तो आईटीसीजेड के बारे में हम जानते हैं, ये शिफ्ट होता रहता है। गर्मियों में आईटीसीजेड क्या होता है, उससे नॉर्मली वहाँ जाता है 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि ये शिफ्ट होकर आ जाता है लगभग, क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो ये यहाँ पे डोल्टम, ठीक है। तो इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से ये शिफ्ट हो जाता है आईटी से, लेकिन डोल्टम क्या है, वो जोन है। कौन सा जोन है? तो डोल्टम एक ना नॉटिकल टर्म था जो किसी को मेट्रोलॉजी में ले लिया गया, मतलब एक ऐसा जोन इक्वेटर के पास जो कि बहुत काम हो। तो डोल्टम बहुत ही काम जोन है, आईटी से तो शिफ्ट होता है, बट डोल्टम क्या है, ये जोन है जहाँ पे काम। यहाँ पे कोरिलेस फोर्स भी लगभग 0 होता है, ठीक है। कोरिलेस फोर्स भी यहाँ पे 0 होता है। ये बहुत ही काम जोन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कभी कभी सडन स्टॉर्म्स बनते हैं, बट वो मतलब बहुत ही मान के चले कि रेगुलर मेन फिनोमेना है कि बहुत ही शांत रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड से विंड आते हैं, ट्रेड विंड्स, इधर से नॉर्थ से और इधर साउथ से, ये साउथ से नॉर्थ से, और यहाँ पे कन्वर्ज करते हैं। ये कन्वर्ज करने के बाद यहाँ से राइज करते हैं, ठीक है। फिर वो राइज करके ये अलग 30 डिग्री पे जाते हैं, इधर भी ऐसी राइज करके और इधर, ठीक है। अपना हो गया इंटरटॉपिकल। टॉपिकल कन्वर्जेंस क्या है? टॉपिकल कन्वर्जेंस कुछ वैसा टर्म है नहीं, ठीक है। इंटरटॉपिकल डाइवर्जेंस क्या? डाइवर्जेंस यही जब हवा उठती है यहाँ से और ये जाती है दोनों ऊपर की तरफ, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। नीचे की तरफ कन्वर्ज, ऊपर उठ के डाइवर्जेंस। चलते हैं नेक्स्ट। आईटीसी में और क्या था, तो ये होगा टोटल, यहाँ से आया हवा, इधर से आया हवा, ठीक है। इधर से हवा जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, ये दोनों टकराए उठ गया, ये दोनों टकराए। तो ये बीच में एक एरिया होता है जो बहुत ही शांत होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड कंडीशन, उसमें क्या था, मतलब ठंडा स्टॉर्म होते रहता है कभी कभी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ भी एटमोस्फेरिक प्रेशर भी काफी लो होता है, क्योंकि बहुत हीट है, इक्वेटर है, सनलाइट आ रहा है एकदम गरम गरम। चलते हैं आगे। तो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेदरिंग वल्नरेबिलिटी, कौन ज्यादा है जिसका चांस है कि वेदर हो सकता है और कौन लेट से होगा, ठीक है। तो हमें कहना है कौन ज्यादा वल्नरेबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कौन सबसे कम है फिर कौन सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम इसमें से आएगा क्वार्ट्ज, ठीक है। अगर हमको याद रखे बॉवेन साइकिल,
ठीक है, या गोल्डी जो साइकिल था वेदरिंग का पिछले जो पढ़े थे, तो उसमें क्वार्ट्ज कहाँ था, क्वार्ट्ज सबसे नीचे था। ठीक है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए इसका वेदरिंग भी बहुत ही मुश्किल से होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है केमिकल वेदरिंग को लेकर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिलिका के जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो काफी टाइटली बॉन्डेड है। उसके बाद आता है फेल्सपर। ठीक है, वही साइकिल हमें यह ना गोल्डी जो सीरीज था वो याद रखना है। ठीक है, या फिर बावेल्स बावेल्स का जस्ट उल्टा कर लेना है। उसके बाद फेल्सपर आएगा यहाँ पे, उसके बाद ओलिवाइन आ जाएगा। ठीक है, सी डी ई। ठीक, उसके बाद बी कार्बोनेट, ए हैलाइड टॉक्साइड। ठीक है, तो हैलाइड क्या है, तो हैलाइड तो मतलब बहुत सी वेदरिंग के हिसाब से सुटेबल है ना, एकदम तुरंत वेदर कर जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालो डिसोल्यूट हो जाता है। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा सोल्युबिलिटी है। ठीक है? थोड़ा भी ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ उसमें ये हो जाता है, इसीलिए जो हाईलाइट डिपॉजिट है वो मोस्टली एरिड रीजन में पाया जाता है। ठीक है, या फिर इम्परविएबल लेयर के नीचे दबे होते हैं। ठीक है? ये लिस्ट है, सो इसको याद ही कर लेंगे बस। हाइलाइट है, कैल्साइट है, ओलिवाइन है। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, प्लेजियोक्रेज है, पायरोक्सिन है, एम्फीवोलफी सोडियम पैनिकुलर है, बायोटाइट है, ऑर्थोक्लेज। ठीक है, ऑर्थोक्लेज को ही पोटेशियम फेल्सोर भी बोलते हैं। मॉस्कोवाइट है, क्ले है, क्वार्ट्ज है, गिब्साइट है, हेमाटाइट। ठीक है, क्वार्ट्ज से भी ज्यादा कौन है, हेमाटाइट। और वेदरिंग बहुत स्लो होता है। उसके बाद है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ डिक्रीजेज विथ, मतलब जो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है। ठीक है, वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, इसके साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कार्बन कंपनसेटेड डेप्थ क्या है, एक डेप्थ है ओशन के, ओशन जो होता है ना उसके नीचे एक डेप्थ होता है, एक मतलब एक कितना बिलो तक जाएंगे जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व फास्टर देन इट एक्यूमुलेट। जहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो फास्टर डिजोल्व करे। ठीक है, किस चीज से, एक्यूमुलेट होने के मुकाबले, तो उस कार्बन कंपनसेशन डेप्थ उसको बोलते हैं कार्बन कंपनसेशन डेप्थ। तो पहला है कि इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, तो ये सही बात है, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड मतलब जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ओशन टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, कोल्डर वाटर आएगा। तो कोल्डर वाटर में क्या होगा, ठीक है, ज्यादा होल्ड मोर डिजॉल्व CO2। तो कोल्डर वाटर में ज्यादा डिजॉल्व CO2 होगा, ज्यादा डिजॉल्व CO2 होगा तो वो ज्यादा कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, ज्यादा कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा तो वाटर की एबिलिटी को, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ताकि डिजॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो CCD है, कार्बन कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, वो शैलो ही होगा। ठीक है, वहां पे डिक्रीज करेगा, मतलब इंक्रीजिंग लैटिट्यूड के साथ साथ डिक्रीज करेगा। अगर लैटिट्यूड में 5000 किलोमीटर है, ये घटते 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 ही जाएगा, क्या हो सकता है कि 1000 किलोमीटर पे ही हो, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा यहाँ पे डिजोल्व कर रहा है, एबिलिटी वाटर का ज्यादा डिजोल्व करने का। तो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ हमारा वहां पे पोल्स की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब कि कम गहराई पे ही आ जाएगा। जो कार्बन कंपनसेशन डेप्थ है, मतलब कि कम गहराई पे कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व फास्टर होंगे एक्यूमुलेशन के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीजिंग लॉन्गिट्यूड, इससे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब लैटिट्यूड मेन है ना, ये तो मेन है नहीं। यहाँ यहाँ ये मैटर, लेकिन अगर यहाँ पे हो और यहाँ पे हो तो दोनों सेमी लैटिट्यूड पे है, तो इससे तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों जगह लगभग सेम टेम्परेचर होगा। उसके बाद डिक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर, ये तो उतना मैटर नहीं करता, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर। ठीक है, ये भी डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर से क्या होगा, इंक्रीज अगर टेम्परेचर करेगा, ठीक है, तो वो CO2 और कम होल्ड करता है। ठीक है, वार्मर वाटर, उसका कार्बोनिक एसिड कम होगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारा CCD है, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, वो तो बढ़ जाएगा ना, तो ये तो गलत है। डिक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर ये हो सकता है। ठीक है, चलते देखते हैं, इंक्रीजिंग ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये भी होगा, ओशन अगर ज्यादा एसिडिफिकेशन, जैसे कभी पहले ग्लोबल वार्मिंग चल, ठीक है, तो अगर ओशन ज्यादा एसिडिफिकेशन होगा, ठीक है, तो वहां भी सेम चीज होगा, क्या करेगा, वो इनहेंस करेगा कैल्शियम कार्बोनेट डिसोल्यूशन को। तो यहाँ भी सैलोअर सैलोअर
क्या बोलते हैं, सैलुलर डेप्थ पे ही हमारा सीसीडी आ जाएगा, मतलब कार्बन कंपनसेशन डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से दो ही ऑप्शन चूज करना था, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ये है एसिडिफिकेशन और क्या होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का टेम्परेचर जो चेंज ही हो रहा है, ए और ई। चलता है नेक्स्ट। तो यही है प्रोसेस। ठीक है, इंक्रीजिंग CO2 इन वाटर, इंक्रीजिंग CO2 इन वाटर, ये है बीच में, मान लो ये है इक्वेटर, इधर अंटार्कटिका का तरफ जा रहा है तो CO2 बढ़ता है पानी में। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर है तो ज्यादा CO2 करेगा। ठीक है, इसीलिए जो सीसीडी है, कार्बन कंपोजिशन डेप्थ, अगर हम देखें तो अंटार्कटिक के पास भी कम कम सैलो पे ही है। कहाँ? इक्वेटर में 4500 मीटर पे है, और यहाँ पे कम पे ही है। ठीक है, उसका एबव सीसीडी एक्यूमुलेट्स होता है, बिलो सीसीडी, ठीक है, कार्बन का जो कार्बन कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या होता है, डिजोल्व होता है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे बहुत नीचे तक है। उसके बाद क्या है, इसीलिए जो है ना हमारे यहाँ, ठीक है, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है वहीं पे पाए जाते हैं कौन से प्लैंक्टन्स या जो क्या बोलते हैं हम, कोरल लिप्स, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन उनके सेल्स ही बनते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म इधर ही पाए जाते हैं, इधर आर्कटिक में, अंटार्कटिक में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक है ज़्यादा, तो वो उसके कारण कंपनसेशन डेप्थ भी कम है। इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी है ऑफ CO2 आर्कटिक में, इंक्रीजिंग CO2 इन वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर पोल्स की तरफ जाएंगे तो सीसीडी हमारा घट सैलो होते जाएगा, इक्वेटर की तरफ और ग्रेट की तरफ में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे तो एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि CO2 वाटर में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर होने के कारण CO2 को होल्ड करने की वाटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज के साथ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो कम CO2 को अपने अंदर रखता है। ठीक है, चलता नेक्स्ट। तो यही बातें सब डिटेल के लिए एक बार पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ते जाए। ठीक है, मैं टाइम की ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा लंबा बहुत वीडियो ना हो, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ता, बट यू कैन एंड यू शुड बहुत हेल्प करेगा आगे एग्जाम। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं और भी एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में जा सकता है अलग तरीके से, तो पता रहेगा तो वहाँ गलत तो नहीं हुआ ना एटलीस्ट। सपोज नेट में नहीं आया तो पूछ चुका है, लेकिन हमें पता है कि नेट के क्वेश्चंस और भी कहीं कहीं आते हैं। तो जैसे कि जो खासकर एपी के पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग तरह के, तो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट। बसाल्ट इज एन इग्नियस रॉक कंपोज्ड ऑफ, बसाल्ट एक इग्नियस रॉक है जिसमें कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज नहीं, क्वार्ट्ज तो नहीं होगा। ठीक है, क्वार्ट्ज तो नहीं होगा, क्वार्ट्ज क्या रेयर है, एब्सेंट रहता है बसाल्ट में। देखो, क्योंकि बेसाल्टिक मैग्मा सिलिका अंडर सेचुरेट, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद है लिथिक ओलिवाइन, ठीक है, प्लाजियो क्लेज और पायरोक्सिन, तो ये सही है, ये होता है। ठीक है, ये फाइन ग्रेन बसाल्ट पता है, ये फाइन ग्रेन हमारा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, जो कि रैपिड कूलिंग में बनता है। ठीक है, लो विस्कोसिटी होता है, क्योंकि 50% के आसपास सिलिका कंटेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये रैपिड कूल करता है, और मोस्टली अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, अर्थ के एकदम हल्का नीचे। ठीक है, नहीं तो मोस्टली अर्थ के ऊपर ही आगे कूल होता है। ठीक है, रिलेटिवली मैफिक होता है, तो जिसमें मैग्नीशियम आयरन रिच लावा होता है। ठीक है, इस कारण से ये इस तरह से बसाल्ट बनता है। तो उसमें ओलिवाइन होता है, ठीक है, प्लाजियो क्लेज हो सकते हैं, पायरोक्सिन हो सकते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। उसमें तो क्वार्ट्ज फिर से है, तो नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पे केव फेल्सपर है, ठीक है, SPA होगा, ये फेल्ड्सपर्स है, ये मोस्टली फेल्सिक रॉक से, जैसे ग्रेनाइट है उसके साथ ज्यादा पाया जाता है ना कि बसाल्ट, इसका आंसर वो भी गलत है। यहाँ फिर से क्वार्ट्ज है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो ये ज्यादा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें ना वो तो बताया कि सिल्का रिच का पता ना, सिल्का कंटेंट लगभग 40-50% के आसपास, तो ये कम है।
ठीक है। लेस सिल्का है, इसकी कंपनी है फेल्सिक रॉक्स की, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा 70% से ऊपर तक सिल्का है। चलते हैं नेक्स्ट। ये आंसर हो गया। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत दिए हैं, देख लेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मेजर करता है वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है। उसके बाद इरिडेंस के लिए, इरिडेंस के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। इरिडेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो पायरेनोमीटर यूज करते हैं। इरिडेंस मतलब कितना वाट पर मीटर स्क्वायर पे, ठीक है, वो मेजर करता है किस यूनिट में, वाट पर मीटर स्क्वायर पे। सोलर रेडिएशन फ्लक्स की डेंसिटी को मेजर करता है कि भाई कितना आ रहा है। उसके बाद क्या है, रेनफॉल। रेनफॉल का हमें सबको पता है कि ये किस चीज में करता है, तो हाइटोमीटर, ठीक है। और भी लिखो एनोमीटर। हाइटोमीटर को रेन गॉज बोलते हैं या प्लूवियोमीटर बोलते हैं, प्लूवियोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके हिसाब से आंसर कौन सा आ जाएगा, 3। यहाँ पे लिस्ट दे दी, एग्जॉस्टिव लिस्ट कि क्या चीज कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है या उसका कॉमन यूनिट क्या है, ये भी आ सकता है। चलिए प्रेसिपिटेशन टाइप है, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी है, अमाउंट है, रेन गॉज, यूरोमीटर, विंडगन है, डायरेक्शन कंडीशन, ड्यू पॉइंट के लिए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर है, ठीक है। क्लाउड बेस के लिए तो उसको सीलोमीटर मिलता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि द लॉ विच स्टेट दैट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर if you stand with your back to the wind there will be low pressure to your left hand and right hand। मतलब जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सपोज ये छोटा सा, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, सामने देख रहा है, पीछे से हवा आ रही है, उसका कह रहा क्या है, पीछे से विंड आ रही है, ठीक है। या देर विल लो प्रेशर ऑन द, ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। यहाँ पे कह रहा है लो प्रेशर होगा और राइट हैंड साइड तो हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये कौन बताता है कि बाइल्स बैलेट, ठीक है, बाइल्स बैलेट लॉ है, ये बाइल्स बैलेट लॉ, ठीक है। तो वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मेट्रोलॉजी का, जो कि विंड डायरेक्शन और प्रेशर सिचुएशन को दिखाता है। इनको, इनका नाम जो इन्होंने किया था CST बाइल्स बैलेट था, मतलब इनके नाम पे है। 1857 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, फॉर्मुलेट किया था ये सिस्टम, ठीक है। मतलब ये कोरिलीस के ही कॉन्सिक्वेंस है, कोरिलीस आया तो उसके आधार पर ये बताया गया, ठीक है। उसके बाद है इसमें किम्बल लॉ। किम्बल लॉ क्या करता है, रेडिएशन को, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, डिफ्यूजन रेडिएशन फ्रॉम द स्काई डिक्रीजेस फ्रॉम द जेनिथ टू होराइजन, ये बताता है, ठीक है। उसके बाद कोरियोलिस लॉ है, तो कोरियोलिस लॉ तो कोरियोलिस को एक्सप्लेन करता है कि क्यों विंड्स डिफ्लेक्ट करती हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है, या राइट की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द हेमिस्फीयर। उसको द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो फिजिक्स का है, जैसे कि जो कि थर्मोडायनेमिक्स या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड करता है। उसका कहता है कि वेवलेंथ क्या होगा ऑफ मैक्सिमम इमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के जो मैक्सिमम इमिशन है, वेवलेंथ जो है मैक्सिमम इमिशन ऑफ फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी, जो वेवलेंथ है, जो एक इमिशन हो रहा है एक ब्लैक बॉडी से, एक रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, इमिशन हो रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट। तो ये वर्ड्स लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, ठीक है। ये कोरियोलिस फोर्स है, ये इमेज कि अगर इधर से आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, तो ये डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स राइट और ये टुवर्ड्स लेफ्ट। ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से है, हमको यहाँ जाना है सीधा, ये सीधा जाने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा, ये सीधा जाने की जगह राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है, तो ये अर्थ के, ठीक है, शेप की वजह से, जैसे कि
अगर किसी को यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ की स्पीड है और इसकी यहाँ की स्पीड, ये तो जल्दी रोटेट करके जगह आ जाएगा ना, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा स्पेस है ना। तो उसके हिसाब से ये है, ठीक है, कि अर्थ के रोटेशन के कारण से कुछ फोर्स हमें महसूस होता है, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन होती है। ये वेन्स लॉ है, ठीक है, ये वेवलेंथ है नैनोमीटर में, और ये टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वेवलेंथ छोटा रहेगा, ठीक है। दिस इज टेम्परेचर, तो वेवलेंथ, ठीक है, यूनिवर्सली उसके प्रोपोर्शनल है। तो मैक्स कब होता है, तो ये वेवलेंथ के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेन्स लॉ में, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, रॉक है और टाइप ऑफ, नेम ऑफ रॉक है, टाइप्स ऑफ रॉक से मैच करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, गार्नेटिफेरस नीस। तो ये क्या है, तो नीस मतलब आ गया, मतलब ये हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक, सिंपल। उसके बाद है क्लोराइट सिस्ट, ये हो गया मीडियम ग्रेड का मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इलाइट क्या हो गया, तो लो ग्रेड का मेटामॉर्फिक रॉक। और सेल क्या हो गया, सेल तो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, फाइन फिल्म सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू, ठीक है। नीस पता होना चाहिए कि नीस हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो सिस्ट वो मीडियम ग्रेड है और फिलाइट लो ग्रेड। इसमें से अगर हमें ए भी पता है, A2, तो ही आंसर आ जाएगा। अगर सिर्फ इतना पता था कि नीस हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है, क्योंकि ये तो लास्ट में फॉर्म होता है, क्योंकि सबसे लास्ट, मतलब सबसे लास्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ लास्ट में ही कह सकते हैं, सबसे लास्ट तो नहीं कह सकते, बट लास्ट के जो फॉर्म होते हैं, जो ग्रुप, ठीक है, उसमें होता है। मतलब बहुत से ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम बनता है, ठीक है। तो ज्यादा टेम्परेचर पे ये 600 डिग्री से भी ऊपर में नीच फॉर्म होता है, ठीक है। जो मीडियम ग्रेड का होता है 300 500, जो लो ग्रेड का होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेडिमेंट्री तो सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये दिया हुआ है कुछ कुछ मेटामॉर्फिक रॉक का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये फोलिएटेड जो है उनका दिया हुआ है, ठीक है, और ये नॉन फोलिएटेड है, उनका दिया हुआ है। इसको पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ भी दिया हुआ है कि फेसिस के हिसाब से। अब नेक्स्ट है कि ये है विंड्स। विंड्स वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका एग्जॉस्टिव लिस्ट भी दे चुके हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो मिस्ट्रल क्या होता है, तो वो देख लेंगे। मिस्ट्रल का होता है कोल्ड विंड, स्पेशल मटेरियल रेजिन फ्रॉम हाई एलिवेशन, ठीक है, A3 हो जाएगा। उसके बाद फोहन क्या हो जाएगा, तो फोहन क्या है, वार्म एंड ड्राई विंड्स है, जो नॉर्दर्न साइड ऑफ एल्प्स में रहता है। सेंटा आना क्या हो गया, तो सेंटा आना वार्म और ड्राई विंड है, जो कि यूएसए में होता है। बोरा हो गया क्या, कोल्ड और ड्राई विंड है, जो कि एडियाटिक सी के पास होता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, फोर। हाँ, फोर आएगा, फोर गया, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड्स ड्यूरिंग 400,000 years to 6,500 650,000 years occurred, ठीक है। तो इन कर्व, तो प्लीस्टोसिन इसी में होता था, इंटरग्लेशियल पीरियड्स, ठीक है। जैसे 40-50 साल के लिए ग्लेस पाँच मतलब आ गया, सॉरी 40-50, ठीक है। इस अराउंड इट वॉज अराउंड जैसे कि 50,000 के लिए, 40-50,000 के लिए, ठीक है। 40-50,000 के लिए ग्लेशियल पीरियड आया, फिर बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड आ गया, ऐसे शिफ्ट होते रहते थे, ठीक है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं ना, तो अभी जो लास्ट हमारा जो आइसिस था, हम 10,000 11,000, ठीक है, ईयर से गो, तो उसके बाद से मान के चलते हैं, हो सकता है क्या पता ये भी एक इंटरग्लेशियल पीरियड है, क्योंकि टेम्परेचर पहले भी से इंटरग्लेशियल पीरियड रहे हैं। और जो हमारा स्टडी है उसके हिसाब से ये था कि जो अभी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है
उसी के आसपास ही रहा या उससे थोड़ा ज्यादा रहा है, ठीक है। तो और प्लीस्टोसिन ई ऐसा वो इपोक है जिसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ एनाटोमिकली मॉडर्न ह्यूमंस का, होमोसेपियंस का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सब क्वेश्चन हम आ रहे हैं, मतलब जूलॉजिकल टाइम स्केल से ऐसा लगभग क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने, वो देख लेंगे एक बार। कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी जरूरत है कि कोरिलेस फोर्स अगर हम जानना है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला हम डेंसिटी ऑफ एयर ना, होरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, बिल्कुल सही बात है, स्पेसिंग ऑफ आइसोबार, ठीक है, ना ना, इससे उतना मतलब नहीं, मास ऑफ मूविंग बॉडी, यस, ठीक है, साइन ऑफ लैटिट्यूड, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, कोरिलेस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर इसको हम देख लेंगे, और इसमें जो जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम पुट कर लेंगे। तो इसमें क्या कहता है, मास ऑफ बॉडी आता है, एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का चाहिए, होरिजेंटल वेलोसिटी चाहिए मूविंग बॉडी का, लैटिट्यूड चाहिए और साइन ऑफ लैटिट्यूड चाहिए, ठीक है। डेंसिटी नॉट डायरेक्टली, ठीक है, मतलब डेंसिटी डायरेक्टली नहीं करता, और स्पेसिंग आइसोबार, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से रिलेटेड है, ना कि कोलियस फोर्स के मैग्नीट्यूड से, मतलब कि जो बेसिक ग्रेडियंट फोर्स है वो विंड को वेलोसिटी को ड्राइव करने का करता है, मतलब बेसिक ग्रेडियंट फोर्स के कारण विंड वेलोसिटी चेंज होता है, बट डायरेक्टली वो इसमें कोलियस फोर्स में के मैग्नीट्यूड में वो नहीं आता है काउंट, तो फॉर्मूले में भी उसका नहीं जिक्र है, ठीक है, चलते हैं। Because the finding of Dome C closely match the proxy climate record derived from the near Vostok ice core. Which law of stratigraphy applies for the correlation between layers of similar edge? तो layers of similar edge में लॉ ऑफ lateral continuity, ठीक है, सिंपल, लॉ ऑफ lateral continuity, जैसे ये लेयर था सब, मतलब ये एक ही टाइम पे बना था, ये सपोज ये एक ही टाइम पे बना था, ये एक ही टाइम, किसी कारण से तो ये नदी बह गई, ठीक है, ये कटाव हो गया, ठीक है, कट गया, हजारों साल से नदी बह रही थी, अब ये दोनों लैंडमास अलग अलग हो गए, बट जब हम गए यहाँ का सैंपल उठाया उतने हाई डेप्थ पे, ठीक है, उतने हाइट या डेप्थ पे, यहाँ भी सैंपल उठाया, यहाँ भी सैंपल उठाया, यहाँ भी सैंपल उठाया, ये सारे सैंपल मैच कर रहे हैं इससे देखिए इनके बीच क्या गैप है, ठीक है, लेकिन ये जो लेयर्स है, सेडिमेंट्री लेयर्स है, ये सारे जो जब जब हम देखेंगे क्या है, ये तो 500 साल पहले का है, अच्छा 500 साल पहले का ये भी है, इसमें भी सेम सेम कंपोजिशन है, ये सेम, मतलब ये सेम पीरियड में ही बने हैं, बट ठीक है, जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल या वट एवर रीजन के कारण इसमें अंदर चेंजेज हो गए हैं। अर्थ फॉर्मेशन, जो अर्थ बिल्डिंग फोर्सेज है, ठीक है, उसके कारण ये सब, ये दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ये क्या प्रिंसिपल ऑफ लैटरल कंटिन्यूटी के आधार पर पता चलता है कि ये दोनों एक ही टाइम के हैं, दोनों के जो सेवेंटी लेयर्स जो है अलग अलग, सब एक ही टाइम के, ठीक है, जस्ट लाइक कि वो एक दूसरे से दूर दूर है, इट डजंट मीन कि वो अलग है, ठीक है, ये एक है स्टैटिक लॉ ऑफ स्टैटिग्राफी में, एक ये है, ठीक है। तो स्टोनोज, तो ये स्टेनोज का लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी है, ठीक है, लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी है, ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यंगर लेयर्स ऑफ रॉक्स टॉप ऑफ ओल्डर, मतलब नीचे ओल्डर होता है ऊपर यंगर। दूसरा है लॉ ऑफ ओरिजिनल होरिजोनलिटी, ठीक है, तो ओरिजिनल ओरिएंटेशन ये था, ठीक है, लेकिन टिल्टिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, उसके कारण से ये चेंज हो गया, बट असल में ये ऐसे ही था, लेकिन अब फोर्स लगने के कारण ये ऐसे ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया या डायगोनल हो गया, ठीक है, या फिर कई बार पलट गया, ठीक है। उसके बाद क्या, लॉ ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप, मतलब जो ए और बी है मस्ट बी ओल्डर देन, ठीक है, इंट्रूजन सी दैट डिस्टर्ब दे, ठीक है, जो ए बी सी है वो ओल्डर होना चाहिए सी से, जो इंट्रूजन हुआ है मैग्मा का, ये सी क्या है, ये ए और बी ये सी से भी पुराने होना चाहिए, तभी तो इसमें इंट्रूजन होगा, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ लैटरल कंटिन्यूटी, जो कि अभी हमने देखा। उसके बाद arrange the sedimentary structures in order of their formation under increasing velocity of water, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर के हिसाब से हमें अरेंज करना है,
सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कि जैसे जैसे वेलोसिटी वाटर बढ़ता है उसके हिसाब से पता है। तो सबसे पहले लोअर प्लेन बेड होता है, ये सही बात है कि सबसे नीचे का लोअर प्लेन बेड होता है, ठीक है, लोअर प्लेन बेड होता है। ये वेरी लो फ्लो होता है वेलोसिटी, जब वाटर बेयरली मूव कर पाता है सेडिमेंट्स को तब बनता है। उसके बाद बनता है स्मॉल स्केल रिपल मास, जब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है वेलोसिटी। उसके बाद होता है लार्ज स्केल रिपल मास, जब स्पीड और है। फिर अपर प्लेन बेड कब बनता है, जब स्पीड और ज्यादा वेलोसिटी हो जाता है, ब्लेड जो बेड होता है फ्लैटनेस आउट हो जाता है फिर से, और ठीक है, और फ्लो इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि वो स्वीप अवे करता है कोई भी बेड फॉर्म को और क्रिएट करता है फ्लैट सरफेस अंडर द स्टीप फ्लो कंडीशन। ठीक है, उसके बाद बनता है एंटीड्यूस। एंटीड्यूस क्या है, हाईएस्ट फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एबीसी डी ई। ये थोड़ा बहुत डिटेल्स के बारे में दिया है और ये है डायग्राम। ठीक है, पहले बनता है क्या, लोअर फ्लो रीजन, तो प्लेन वेव लेंगे, फिर रिपल्स थोड़ा थोड़ा बहना शुरू होता है, फिर ड्रोन्स। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, अपर फ्लो रीजन, फिर क्या होता है प्लेन बेड लैमिनार, लेकिन अब अपर फ्लो रीजन का बनेगा। उसके बाद क्या होता है एंटीड्यूस, ठीक है, स्पीड और फ्लो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सूट और पूल बनते हैं। ठीक है, ये दिखाता है फ्लो वेलोसिटी इंक्रीजेस, उसके हिसाब से ये हमारा क्या बोलते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, बनता है। द प्रोसेस इन विच concentrated cells of rocks may spall from the outside of an outcrop or boulder is known as एक्सफोलिएशन। ये सिंपल सा एक्सफोलिएशन के बारे में है। ये रॉक ऐसे छिलका निकला है, ये फिर छिलका गिर गया, ठीक है, फिर ऐसे इधर से निकला फिर गिर गया, तो ये होता है एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो इसका प्याज की तरह निकलते जा रहा है। और एक दूसरा होता है स्नो, ठीक है, स्नो और फ्रॉस्ट फैक्टरी, ये क्रैक हुआ, पानी आ गया, ठीक है, फिर ये जम गया, जमने से इसकी क्या पता हमें एक्सपैंड करता है, तो पता है ना स्नो जमता है वाटर तो एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा तो फिर क्रैक पड़ गया, ऐसे रिपीट होते होते वेदरिंग होता है। ये सब चीजें डिटेल में थोड़ी दी हुई है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वेदरिंग दिया हुआ है फिजिकल में, वेटिंग टाइम्स, पॉल्यूशन, सॉल्ट, ठीक है, केमिकल ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन कार्बोनेशन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन वेरिएशन, वेदरिंग, वेदरिंग बाय ह्यूमंस। चलते हैं नेक्स्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या, तो क्वेश्चन 62, अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, कि इस सॉइल में कितना ऑर्गेनिक मैटर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, किसमें सबसे कम होता है और किसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा कम कौन सा फॉरेस्ट है और टॉपिकल एग्रीकल्चर सॉइल में, ठीक है, सबसे कम होगा, तो बस इसी से आंसर आ गया, डी बी एस सी। आपको ये पता है कि इसमें सबसे कम होता है, तो विल कम टू द आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बी टेम्परेट एग्रीकल्चर सॉइल होता है, ठीक है, ए फॉरेस्ट सॉइल होता है, सी पीट सॉइल होता है। तब इसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है ये इसमें ऐसा होता है, तो जो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है, यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत फास्ट डिकम्पोज होता है, इस कारण से वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत कम ही बचता है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेट एग्रीकल्चर सॉइल, तो वहाँ भी सेम है कि कल्टीवेशन टिलेज के कारण जो होता है एक्सपोज रहता है ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के कारण, जो कि ओवरऑल कंटेंट को डिक्रीज करता है। उसके बाद बात आता है फॉरेस्ट सॉइल में, तो फॉरेस्ट सॉइल में क्या है, तो वहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जो सरफेस होराइजन ए होराइजन है वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमेशा कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना लीफ लिटर का, ओडी डेब्रिस का, जो कि स्लोली डिकम्पोज करते रहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे, जिसके कारण की ऑर्गेनिक लेयर रिच रहता है। पीट सॉइल तो वो सॉइल हो गए जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्यों,
क्योंकि कभी कोई 80% तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि पीट फॉर्म कहाँ था? वाटर लॉग एनवायरमेंट पे, जहाँ की डिकम्पोजिशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनारोबिक कंडीशन होता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को एक्यूमुलेट होता है, हजारों साल तक एक्यूमुलेट होते रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हाई वाटर कंटेंट, लो ऑक्सीजन लेवल होता है पीट में, इसी कारण से वहाँ पे माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन भी स्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर डी भी हुआ। ये दिए हुए डिटेल्स, और ये पूरे मैंने एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दिया है। यू कैन सी, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, कि अगर इस तरह के सवाल अगर आगे चाहते हैं तो मैंने कुछ और दे दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो दिया हुआ एग्रीकल्चर सॉइल लेस देन 1.5%। ठीक है, मिनरल सॉइल टेम्परेचर एग्रीकल्चर में तो इतना ही होता है। ठीक है, रिसेंटली क्लियर में इतना, टर्गल फॉरेस्ट में इतना होता है। ठीक है, ये ऐसे पूरा एकदम डिटेल्स में दिया। हीट बॉक्स में देखो कितना दिया हुआ है, 5 to 95%। ये कैसे आ गया? हाँ, चलो, good। उसके बाद क्या था? विंड ब्लोइंग पैरेलल टू आइसोबार एंड राइट एंगल ब्रेसिंग, जियोस्टैटिक। ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये रिपीट है, सेम टू सेम, तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है प्योर टू इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑप्शंस थोड़े अलग दिए हैं। ठीक है, प्लानिटरी विंड्स, तो प्लानिटरी विंड्स वो होते हैं, कौन से होते हैं प्लानिटरी विंड्स? तो प्लानिटरी विंड्स वो होता है तो ग्लोबल सर्कुलेशन को जैसे फॉलो, जैसे कि ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया, एंटी ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स के कहते हैं, बट अपर एटमोस्फेयर है, अपर ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, प्रिवेलिंग विंड्स हो गया वो विंड जो, ठीक है, क्या हो गया, कॉमन विंड डायरेक्शन एक पर्टिकुलर लोकेशन से। चलते हैं नेक्स्ट। तो intrusive igneous rocks that contains unusually large mineral grains is called। ठीक है, एक intrusive igneous rock है, इसमें यूजली लार्ज मिनरल ग्रेन्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर है पेगमाटाइट। बसाल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रूसिव नहीं है, ये क्या एक्सट्रूसिव है, ये बाहर आके मस्त ठंडा होता है। ठीक है, रायोलाइट क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो रायोलाइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी एक्सट्रूसिव igneous रॉक है, बट इसका फेल्सी कंपोजिशन है, मतलब सिलिका इसमें ज्यादा है। उसके बाद ऑक्सीडियन क्यों नहीं होगा? तो ऑक्सीजन एक्सक्लूसिव रॉक्स है, वो भी बाहर आके रैपिडली कूल होके बनता है, इसका कोई क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें एक यही है इंक्लूसिव, पेगमाटाइट। ठीक है, ये पूरा लिस्ट मस्त सा दिया हुआ कि कोर्स ग्रेन सबसे ज्यादा किसका है, पेगमाटाइट का। कूलिंग क्या है, एकदम स्लो है, इंक्लूसिव है। ठीक है, फिर एक फेनेरेटिक है, कोर्स ग्रेन है, वो भी प्लूटोनिक है, इंक्लूसिव है। ये सब प्लूटोनिक क्या होते हैं, सब प्लूटोनिक ये जब भी हम क्लासिफाई करेंगे ना रॉक्स पे वेरी सून, उसमें ये सब जान लेंगे। ठीक है, तो प्लूटोनिक किसको बोलते हैं, ऐसा वोल्केनिक किसको बोलते हैं, वोल्केनिक कौन हो गया। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। बसाल्ट हो ना, एक्सक्लूसिव है, ऑब्सिडियन भी एक्सक्लूसिव है। ठीक है, रायोलाइट भी एक्सक्लूसिव है। तो अगर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव भी पता ना, एक्सक्लूसिव में कौन सा है, इंक्लूसिव में कौन है, तो भी इसका आंसर निकल जाता है अगर इतना डिटेल भी ना पता। नेक्स्ट है कि ये बताना है कि किसका इंटरफेनोमा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। साइक्लोन का तो लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए, वेयर विंड्स मूव काउंटर क्लॉइज इन लो प्रेशर सेंटर। सही है, बिल्कुल सही है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ब्रीफ इंटेंस स्टॉर्म विथ रेन में लाइटनिंग होता है, अभी वही सीजन चल रहा है। ठीक है, लगभग नॉर्थ इंडिया में यही वाला सीजन है ऑलमोस्ट। ठीक है, आ चुका है। ठीक है, लाइटनिंग और थंडर का, काले काले बादल आएंगे, धड़ाक से तो एकदम जोर से वर्षा होगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आफ्टर दैट एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। उसके बाद हरिकेन। हरिकेन क्या है, गेल विंड्स है। ठीक है, इनको टाइफून भी बोलते हैं। टोर्नेडो क्या है, स्मॉल मोस्ट वायलेंट वेदर डिस्टर्बेंसेस है टोर्नेडो।
ठीक है, ये बहुत ही वायलेंट होता है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका कौन सा आंसर आएगा? आंसर हो गया इसका 4, A4, B3, 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 C1। अच्छा, D2। इसमें सब कुछ पता होना चाहिए मुझे आंसर आपका। ये डिटेल डिटेल दिए हुए। हाँ, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 66, calculate residence time of chemical species in atmosphere having a mixing ratio of 1 part per billion by mass। ठीक है, टोटल फ्लक्स दिया है स्पीसीज का, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स इतना है, मास इन एटमॉस्फेयर इतना है। तो ये इस यूनिट का क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, अब इसमें है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टेंस टाइम, रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। ठीक है, इसका क्या होता है, मास बाई, ठीक है, फ्लक्स, मास बाई फ्लक्स होता है। तो सबसे पहले देखिए मिक्सिंग रेशियो कितना दिया है, मिक्सिंग रेशियो कितना दिया, मिक्सिंग रेशियो क्या है, 1 TeV। ठीक है, बाई मास है, बाई मास। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10⁹ लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। ठीक है, मिक्सिंग रेशियो इतना आ गया। तो मास इक्वल्स टू कितना होता है, तो मिक्सिंग रेशियो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मिक्सिंग रेशियो इनटू टोटल मास ऑफ एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर का टोटल मास दिया हुआ ऑलरेडी, मिक्सिंग रेशियो कितना हमारा आया है, 1/10⁹ सॉरी, इंटू 4 × 10⁻21 ग्राम। तो ये कट जाएगा 921, कितना हो जाएगा, 200, सॉरी 200 नहीं आएगा, ऊपर से देखिए एंथ्रोपोजेनिक सोर्स वो फ्लक्स देखिए कितना होगा, 4 सॉरी 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 21 में से 9 जो डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ, 10⁻12, 9, ठीक है, 9 21, ठीक है, 12 + 9 21, ठीक है, तो ये हमारा मास आ गया। ठीक है, टोटल फ्लक्स ऑलरेडी दिया है 200 इंटू 10⁻, ठीक है, 12, 10⁻12 12 ग्राम। ठीक है, करिए, तो हमारा फॉर्मूला था मास इंटू फ्लक्स, रेजिस्टेंस टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो हमारा मास कितना आ गया, 4 × 10⁻12 ग्राम है। ठीक है, वजन वेट कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻12 ग्राम पर ईयर। तो ये ग्राम कट गया, ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 4/200 पर ईयर। ये कितना आ जाएगा, ये 1/50 ईयर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे वीक में, वीक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/50 इंटू 52/1, 1 ईयर में कितना होगा, 52 वीक्स। तो ये कट गया, ये आ जाएगा 52/50, ये क्या आ जाएगा, लगभग लगभग 1.04 वीक्स। रेजिडेंस टाइम कितना है, लगभग लगभग 150। ये इस तरह से इसको निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, अगर इतना कुछ दिया हुआ है तो बहुत आसान है, मतलब फ्लक्स तो यही रहेगा, मास ऑफ एटमॉस्फेयर मोस्टली याद करके जाएंगे। ठीक है, 4 × 10⁻21 ग्राम ये दिया रहेगा, पूरा 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 जितना कि मिक्सिंग रेशियो से पार्ट्स पर बिलियन में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्सिंग रेशियो में, इसको इस तरह से, और मास फिर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मास क्या होगा एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में, और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में फ्लक्स दिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका किस केमिकल का कितना फ्लक्स है हमें क्या पता। ठीक है, नेक्स्ट सेम सब कुछ दिया हुआ है, एक बार फिर से देख सकते हैं अगर वहां अच्छे से समझ में आया क्लियर तो। अब है डार्सी लॉ। डार्सी लॉ इन ए स्ट्रिंग इज डिपेंडेंट ऑन, जो डार्सी लॉ है अपने एक स्ट्रिंग में वो किस चीज पर डिपेंडेंट है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाइड्रोलिक रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ये तीनों इसके उसमें आता है फॉर्मूले में, तो ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं,
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी ग्रेविटेशनल। तो ये जो तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी इम्प्लाइड है, मतलब डायरेक्टली स्ट्रिक्टली मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी और फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है कि कितना फ्रिक्शन लगता है वाटर को, मतलब फोर्स के थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया से जाते समय, तो वो तो है ही, बट वो भी इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी तो मान लो एक्सप्लिसिट है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ भी इम्प्लिसिट है, फ्रिक्शनल फोर्स इम्प्लिसिट है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ भी इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है। ठीक है, फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ भी इम्प्लिसिट है, क्योंकि ग्रेविटेशन के फोर्स के हिसाब से, मतलब जैसे फ्लो होता है, ग्रेविटी चेंज हो गया, उसके हिसाब से ये फ्लो करता है। ठीक है, तो ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि आंसर, ठीक है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, बट मैं ए ही मानूंगा, क्योंकि जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इम्प्लिसिट है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इम्प्लिसिट है, तो बेस्ट तो यही है ना, क्रॉस सेक्शन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और कोएफिशिएंट परमिटिविटी, ये तो सबसे बेस्ट है। ये ऑप्शन ए मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ लोग ए एंड बी भी बोलेंगे, बट नॉट अकॉर्डिंग टू मी। फिर तो सारा ही सही है उस तरह से देखे तो। ठीक है, ये फ्लो है डायरेक्शन का, और ये फॉर्मूला है कि क्यू इक्वल्स टू ए इंटू, ठीक है, डेल्टा एच बाई एल। तो क्यू क्या है, डिस्चार्ज है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोलिक कंसिटी ऑफ इनकल कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और डेल्टा एच बाई एल क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन हो रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। तो अब क्या पूछ रहा है, अच्छा, मैच करना कि हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक, इसमें से कौन से होंगे। हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक, तो हाई टेम्परेचर इग्नियस रॉक्स, तो कोमाटाइट। तो ये हाई टेम्परेचर रॉक है, कौन है, कोमाटाइट। कोमाटाइट क्या है, हाई टेम्परेचर रॉक है। ये किसी से बनता है, कहाँ, ये 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर का जो मैग्मा होता है उससे बनता है। ठीक है, ये बहुत एक अल्ट्रामार्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। उसको बाद हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक, तो हमने क्या पढ़ा था, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक, उसको था जो ग्रेनुलाइट। ठीक है, उसको बाद क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। क्लास्टिक सेडिमेंट्री क्या हो जाएगा, अर्कोस, अर्कोस। ठीक है, उसका बाद नॉन क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक हो गया, तो डोलामाइट। नॉन सेडिमेंट्री मतलब या तो ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ओरिजिन का हो या केमिकल ओरिजिन का हो, वो डोलामाइट। ठीक है, ये मिनरल से बना होता है, ये फिजिकल फ्रेगमेंट से रॉक से नहीं बना होता है, ये केमिकल है, बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक है। ये केमिकल प्रेसिपिटेशन या बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो उसी हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा हमारा A4 B1 C4 D3। उसके बाद लैंडफॉर्म से मैच करना है हमें। ठीक है, तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर लैंड हमें सभी को पता है, ड्रमलिन। इसमें ये नहीं पूछता है, पूरा डिटेल में नहीं जाता है, क्या बोलते हैं यूजीसी नेट। ठीक है, तो यहाँ पे वो समस्या नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जानना है कि ग्लेशियर लैंडफॉर्म में ड्रमलिंग क्या है, हो सकता है नेक्स्ट में चला जाए कि ड्रमलिंग वगैरह बताइए। आई डोंट थिंक सो, मेनली इसी में जाएगा, अभी तो इसी में खेलेगा, बहुत कुछ खेलने को है। तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म ड्रमलिंग, फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या हो जाता है, तो फ्लूवियल नेचुरल लेवल। ठीक है, एओलियन लैंडफॉर्म क्या हो जाएगा, तो हमॉक की क्रॉस बेंडिंग। और स्टॉर्म जनरेटेड लैंडफॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी, एओलियन लैंडफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, अरे वेंटिफैक्ट्स, ये स्टॉर्म जनरेटेड हमॉक, हमॉक की क्रॉस बेंडिंग स्टॉर्म जनरेटेड लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, तो ड्रमलिन्स होते हैं ओवल शेप्ड के हिल्स। ठीक है, इलोंगेटेड ओवल शेप्ड हिल कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल टील होते हैं। ठीक है, ड्रमलिन्स ऐसे ऐसे पहाड़ों में। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं था पहाड़ों में,
इसको बोलते हैं एक टोपोग्राफी। उसको बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म। तो नेचुरल लेवल, नेचुरल जैसे नदी है, ये बह रही है, बाढ़ आया, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया, पूरा बाढ़ आगे तक गया, वापस आते समय सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट कर दिया नदी में। तो ये क्या हो गया, ये एरिया ऊंचा हो गया दोनों साइड। ठीक है, ये नेचुरल लेवी हो गया। तो ये नेचुरल लेवी प्रोटेक्ट भी करता है कि पानी अगले साल बढ़ा तो यहीं तक पानी रह गया, पूरा नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी सेडिमेंट से ये बन चुका है। और इधर भी फिर से लोड एरिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो वेंटी फैक्ट्स। तो वेंटी बॉक्स जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो शिफ्ट किए जाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं विंड से और सैंड पार्टिकल से। उसके बाद स्टॉर्म जो जहाँ की क्रॉस बेंडिंग है, ठीक है, तो वो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, कैरेक्टराइज बाई अनडुलेटिंग लो एंगल क्रॉस लेमिनेशन होता है। जो सैलो मैरीन इन्वायरमेंट में होता है ना, वहाँ पे ये मिलता है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फ्रॉम द लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, तो ये देखा है, इससे इस तरह के बहुत सवाल आते हैं कि हाई ग्रेड से कौन बनेगा, लो ग्रेड से कौन बनेगा। ठीक है, लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म मतलब 150 सेंटीग्रेड से 450 या 300 मान लीजिए, 300 या 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ये लो में। ठीक है, ये अपर पार्ट्स ऑफ अर्थ में होता है, क्योंकि ये जैसे हमने पढ़ा था पहले, इस सवाल के जैसे जब डेप्थ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, इसीलिए अपर पार्ट में बनता है। तो इसका बनता है कौन सा लो ग्रेड होगा, तो मॉस्को वाइट, हाँ ये होता है लो ग्रेड है। ठीक है, सीड सिलिकेट मिनरल है। उसके बाद है गार्नेट, नहीं गार्नेट नहीं है। ठीक है, कहाँ ये बनता है, तो मीडियम से हाई पे बनता है। उसके बाद एंडरसुलाइट, ठीक है, ठीक है, एंडलुसाइट, तो ये है। उसके बाद क्या है, कैनाइट, तो नहीं कैनाइट नहीं होगा। ठीक है, ये भी मीडियम से हाई ग्रेड का है। ठीक है, एक्टिनोलाइट, तो ये है। तो ACE, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं next। जो कैनाइट है, ग्रेनाइट है, वो लगभग इसमें आते हैं मीडियम से हाई में। तो ये एक लिस्ट दिया हुआ, वेरी लो ग्रेड में क्या आ गया, तो जियोलाइट्स, ठीक है, ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स। लो ग्रेड में क्या, मुस्कोवाइट, एपिडाइट, एक्टिनोलाइट, तो इसे ही बन जाएगा। मीडियम ग्रेड में क्या क्या, गार्नेट। ठीक है, मीडियम ग्रेड में क्या है, गार्नेट है, तो कैनाइट है। तो यहाँ से अगर ये लिस्ट हमें लगभग याद है या दिमाग में है, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लें तो हो जाएगा। हाई ग्रेड में क्या है, तो सीमेनाइट है, कोडियराइट है, और के फेल्ड्स। और बहुत ज्यादा के लिए करना है, क्या करना है कि जितने प्योर में सब आते जा रहा है, सिर्फ इतने को भी याद रख लेना, तो भी हमारा काम आगे के लिए आसान हो जाएगा। पूछेंगे तो यहीं से घुमा फिरा के। अल्ट्रा हाई पर, ठीक है, कोई साइट हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, उसका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में सेफराइन हो गया। ठीक है, मसूमिलाइट हो गया, ये सब वो था। क्लासिफिकेशन क्या था मेटामॉर्फिक का, मेटामॉर्फिक ग्रेड के आधार पर। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मेटामॉर्फिक फेसिस के आधार पर, जो इसके पहले क्वेश्चन था ना, 4 5 6 क्वेश्चन के पहले, जो पिछले साल के मतलब 1 साल पहले के पेपर में आया था। तो वहां पे क्या था, फिजिक्स के आधार पर तो जियोलाइट जो होते हैं, ठीक है, उसमें मिनरल्स देख लेंगे हम। ये भी याद करना है कि जियोलाइट का टेम्परेचर, एपक और मिनरल्स। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक फेसिस के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में कौन से जो पार्ट नहीं है, तो डिपोजिशन होता है, हाँ, डिपोजिशन होता है, इरोजन होता है, हाँ। इंट्रूजन नहीं, इंट्रूजन नहीं होता, ये इग्नियस का पार्ट है। कि मैग्मा आया, ये क्रैक था रॉक के पीछे, मैग्मा आया यहाँ इंट्रूड कर गया, फिर बाद में कूल डाउन हो गया, ये बन गया। नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या था, पहले इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर लिथिफिकेशन होता है। तो इरोजन से भी पहले क्या होता है, वेदरिंग होता है। ठीक है, विरोधन के बाद, वेदरिंग के बाद ही इरोजन होता है। इरोजन के बाद फिर अपना डिपोजिशन, डिपोजिशन एक बार हो गया, तो फिर लिथिफिकेशन होगा। लिथिफिकेशन में 2 पार्ट होता है, जैसे कॉम्पैक्शन होता है और सीमेंटेशन होता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेडिमेंट आते गया और नीचे वाले लेयर प्रेशर मतलब वजन के कारण, वेट के कारण, मतलब पानी या पूरे स्पेस कम होता गया। सीमेंटेशन क्या होता है कि जो रिजॉल्व मिनरल है, मिनरल्स वो प्रेसिपिटेट करते हैं, और जो सेडिमेंट्स के बीच में जो पार्टिकल्स है,
उसके बीच में जो स्पेस है उसमें आके वो और मतलब काफी फाइन होता है, उसमें आके सीमेंटेशन में काम करता है, मतलब इस स्पेस को पूरी तरह से भर देते हैं, तो बाइंड टुगेदर कर देते हैं, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स को। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद डन हो गया, डिपोजिशन में पढ़ ही लिया हम। तो ये होता है इंट्रूजन, नहीं होता वो एलियस डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा प्रोसेस है कि वेदरिंग होगा, मैकेनिकल केमिकल जो भी होना है, इरोजन होगा डिफरेंट, ठीक है, मीडियम के थ्रू वाटर विंड ग्लेशियर ग्रेविटी, फिर डिपोजिशन होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ होना है, फिर कॉम्पैक्शन होगा, फिर सीमेंटेशन होगा, ये दोनों कंबाइंड प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। चलता है लिथिफिकेशन का उनका फॉर्मेशन। उसके बाद एक कोन ऑफ डिफ्लेशन फॉर्म्स, एक जो कोन है डिफ्लेशन का कब फॉर्म होता है, ठीक है। स्ट्रीम फ्लोज इनटू सिंकहोल नहीं, वाटर इन जोन ऑफ एरेशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन जोन ऑफ सैचुरेशन नहीं, स्प्रिंग फॉर्म्स व्हेन ए पर्च वाटर टेबल इंटरसेक्ट टेक द सरफेस नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वाटर इज बी ड्रॉन फ्रॉम वेल फास्टर देन इट फ्लूज, हाँ इससे होता है, ठीक है, तो सही ऑप्शन है क्या है डी, ठीक है। तो स्टीम फ्लोज इनटू सिंकहोल जो पहला ऑप्शन है उसे नहीं होता है। तो उसके बाद जो है वाटर इन जोन ऑफ एरेशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जोन ऑफ सैचुरेशन, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये उल्टा है। उसके बाद स्प्रिंग फॉर्म्स व्हेन अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली फ्लो आउट द सरफेस, ठीक है, और वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे वाटर टेबल इंटरसेक्ट करता है लैंड सरफेस को, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी, तो ऐसे होता है, ये है जोन ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ से हम तेजी से पानी निकाल लें वेल के थ्रू, ठीक है, ये अपना ओरिजिनल वाटर टेबल था, ठीक है, हम पानी निकालते गए पानी कम होते गया, ठीक है, ये अपना ग्राउंड वाटर है, ये एक्विफर है, ठीक है, यहाँ से आता है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, पानी कम होता है, तो ये जोन ऑफ डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये जो एक्विफर है था, कभी यहाँ से पूरा पानी था वो सब तेजी से हम निकालते जा रहे हैं, रिचार्ज अगर रिचार्ज होता रहेगा तो ये जितना ज्यादा रिचार्ज हो, सपोज कि ज्यादा ठीक ठाक रिचार्ज होगा, तो जोन ऑफ डिप्रेशन बहुत छोटा सा होगा, बस इतना ही, क्योंकि ये रिचार्ज हो जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो क्योंकि हमारा जो वाटर निकालना है वो बहुत तेजी से होता है, ये मोस्ट ऑफ इंडिया के रीजन सब ये समस्या होने जा रही है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी लोग फेस कर रहे हैं कि इतने ज्यादा पानी निकाल रहे हैं तेजी से कि मोस्ट ऑफ जगह क्या हो गया है, जोन ऑफ डिप्रेशन हो गया है। उसका और भी खतरा क्या है कि वेल से निकालते हुए जोन ऑफ डिप्रेशन बनता गया, उसके कारण क्या होता है कि जैसे समुद्री एरिया में जो समुद्र किनारे है, ये सी लेवल है, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये सॉल्ट वाटर है, ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम इसके पहले वीडियो में पढ़ा था ना क्वेश्चन, इसके दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में, ये बहुत तेजी से निकलेगा तो ये घटेगा, ठीक है, ये फ्रेश वाटर यहाँ जाएगा इसके, ठीक है, जोन ऑफ डिप्रेशन के पास, ताकि वाटर टेबल ही सोचेगा मैनेज करने का, मैनेज है, उसका ये स्पेस खाली होता है, इसके बाद क्या होगा, सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन हो जाएगा, तो जब ये एक दिन ये मैच करते करते यहाँ तक ये पहुंच गया, तो फिर क्या हो जाएगा, इस पंप से वेल से सारा पानी लाएगा, ठीक है, तो ये भी काम नहीं होने देगा। चलते नेक्स्ट। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग एक्विफर मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोरोसिटी, पोरोसिटी के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोरोसिटी के हिसाब से करना है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है पोरोसिटी, इसका ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा इसमें से, तो लाइमस्टोन का, और यहाँ पे लाइमस्टोन कंसीडर किया जो कि फ्रैक्चर्ड नहीं है, ठीक है, फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन होता तो जिसमें ऑलरेडी केमिकली क्या बोलते हैं उसमें फ्रैक्चर्ड है वो, क्या बोलते हैं केमिकली उसमें रिएक्ट करके उसमें बहुत सारे पोर्स बन गए हैं, तो वो नहीं, ये अभी, ठीक है, ये फ्रैक्चर्ड नहीं है। उसके बाद आता है, तो बी पहले आ गया, तो ये दोनों चलेगा, लाइमस्टोन के बाद क्या आ जाएगा, लाइमस्टोन के बाद आ जाएगा ग्रेवल, ठीक है, तो बी के बाद सी, ये दोनों सही है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा फाइन सैंड, ठीक है, फाइन, और उसके बाद आ जाएगा क्ले। तो फाइन सैंड में ना जैसे पोर्स पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है,
क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें होने के कारण पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फाइन सैंड्स में इसी कारण से उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है ग्रेवल के। और जो क्ले होता है वो हाई पोरोसिटी होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइनी स्पेसिस बहुत सारे, वो अलग बात है कि टाइनी स्पेसिस से जो वाटर है तेजी से परमेबल नहीं होता है, पास नहीं कर पाता है। ठीक है, बट इजीली फ्लो नहीं होता, लेकिन फिर भी पोरोसिटी तो अगर हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पोरोसिटी। ठीक है, वाटर फ्लो के हिसाब से देखें तो अलग बनेगा, ये पोरोसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, तो ये पोरोसिटी रेंज एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मैच करना है सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड। तो पहला क्या है, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या होता है, आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ए का, तो ए का वन। ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता है। उसका क्विकलाइन। तो क्विकलाइन क्या होता है, क्विकलाइन क्या होता है, तो क्विकलाइन होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आ गया। तो सी का क्या होता है, सी का कैल्शियम। सिलेक्ट लाइन का क्या होता है, तो सिलेक्ट लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब पानी के साथ मिलके जो बनता है। और लाइम वाटर क्या है, तो लाइम वाटर हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है, हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है, जिसको हम यूज करते हैं क्या चीज, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये टेस्ट करते हैं लैबोरेटरी में कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या होता है, मिल्की वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, जब CO2 उसमें है तो वो हो गया। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्विकलाइन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब हीट करते हैं ना लाइमस्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस को बोलते हैं। डिकम्पोज होता है तो CaCO3 को हीट जब करेंगे, हीट, तो ये क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वो CO2। ठीक है, ये होता है। और सिलेक्ट टाइम जो पता ही होगा, चलते हैं नेक्स्ट। ये दीजिए, उसमें कोरिलेस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ओवर द अर्थ सरफेस डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। यस, मास ऑफ द पार्टिकल ना, मतलब इम्प्लिसिट है, बट एक्सप्रेशन है। लैटिट्यूड ऑफ लोकेशन बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिल्कुल, लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन ये तो बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ACD। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है कोलिटिस का, वो क्या होता है, कोरिलेस एक्सेलरेशन का क्या होता है, 2 इंटू, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जो अर्थ रोटेशन कारण होता है, उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है, तो इसमें ये तीनों फिट बैठता है। नेक्स्ट, तो ये दिया हुआ, ठीक है, मोस्टली फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला को ही क्या किया है ना, वर्ड्स में करके दे दिए हैं, तो वो याद रहा तो हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्लक्स wall of a hydroxyl isolated cubical building placed at latitude of 50 degree north, peak in the morning period during summer season, the wall facing just, कब है, आइसोलेटेड मॉर्निंग पीरियड। ठीक है, तो पहले एक हम क्यूबिक बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट, ये ईस्ट है। तो ठीक है, ये क्यूब है, मन की आंखों से देखेंगे तो क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो बना ही देते हैं, ये जज नहीं करेंगे। ठीक है, बस क्यूब। तो उसमें क्या बोलता है कि 50 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, 50 डिग्री नॉर्थ में है, ये लाइन जा रही है, ये 50 डिग्री नॉर्थ। समर सीजन का सुबह की बात है। तो जब नॉर्थ में होता है, जब समर सीजन होता है, ठीक है, तो जो सन राइजेशन कब होता है, इस जगह,
तो इसमें थोड़ा और नॉर्थ से जाके करता है, नॉर्थ ईस्ट से। तो मॉर्निंग में राइज करेगा तो सन का रेज कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो ये हमारा ईस्ट साइड है, ये हमारा साउथ साइड था, ये हमारा नॉर्थ साइड था, ये हमारा वेस्ट साइड था। तो सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, इस साइड पे ही आएगा ना सुबह सुबह। ये फिर सन ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, और ये साउथ वेस्ट में जाके सनसेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम मॉर्निंग में कहाँ आएगा, तो मॉर्निंग में ईस्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद पीक कब करेगा, मतलब ये ऐसे बता रहे इसके ऊपर से जाएगा। तो पीक कब करेगा, तो नून में, लेकिन कौन सा वॉल रहेगा नून में, तो साउथ, यहाँ पे सन रहेगा ना नून में। तो यहाँ से ऐसे आया साउथ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वेस्ट फेसिंग वॉल है वो कब करेगा, ये लेट नून में और इवनिंग में करेगा, कौन, वेस्ट, ठीक है, क्योंकि उसको तो सनसेट हो जाएगा। और नॉर्थ किसको होगा, नॉर्थ को सबसे कम मिलेगा, क्योंकि इधर से तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसको इधर से आएगा ही नहीं सब, तो इधर से मोस्टली रेडिएशन के थ्रू जो भी आएगा वो होगा, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम तुरंत बना लेना तो क्वेश्चन ये समझ में, इसका आंसर है ईस्ट। उसका द विच फीचर ऑफ केमिकल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ टुडे रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ आयरन कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, कौन सा फीचर करता है, ठीक है, केमिकल डिफरेंशिएशन और टुडे रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ आयरन कैटास्ट्रॉफ का इन्फ्लुएंस कौन सा फीचर आता है, तो देयर इज मोर आयरन कोर देन इन क्रस्ट, ये आंसर सही है। क्यों, क्योंकि जब आयरन कैटास्ट्रोफ हुआ था तो एक मेजर इवेंट था आज के समय में, ठीक है, तो उस समय मोल्टेन आयरन निकल थे, तो वो लोग डेंस थे सिलिकेट से, तो क्या हुआ, तब जाके सेंटर की तरफ सिंक कर गए, ठीक है। उसकी उसी कारण से ग्रेविटेशनल सेपरेशन हो गया, ठीक है, वो लोग ज्यादा भारी थे तो बीच में जाके सिंक कर गए। उसके बाद अर्थ का लेयर स्ट्रक्चर बना, तो जो मेटल रिच कोर है ना, और सिलिकेट रिच मेटल और क्रश बने, तो यही हमारा आयरन कैटास्ट्रोफ क्या होता है, उसको बोलते हैं इवेंट को, ठीक है। तो अर्थ में हमारा आयरन सबसे ज्यादा है, जो क्रस्ट में आयरन है वो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, तो आयरन रेयर नहीं है, और पूरे अर्थ को मिलाकर सबसे ज्यादा आयरन ही है, ठीक है। चलते हैं उसके बाद इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ग्रेडियंट विंड अराउंड हाई प्रेशर कैरेक्टराइज बाय, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रेडियंट विंड है हाई प्रेशर के आसपास, वो कैरेक्टराइज किया जाता है किसके द्वारा, तो कैरेक्टराइज किया जाता है इसके द्वारा, तो कहते हैं सुपर जियोस्टॉपिक और क्लॉकवाइज फ्लो के द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि जो, ठीक है, ग्रेडियंट विंड है ना, जो जियोस्टॉपिक मान के चलते हैं, तो वो विंड कैसे बह रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज होता है, जब कन्वर्ज होता है तो स्लोअर हो जाता है, ठीक है। और जब ये डाइवर्ज होता है, ठीक है, तो वो फास्टर हो जाता है, फास्टर देन जियोस्टॉपिक, जियोस्टॉपिक विंड के स्पीड से। और ये कौन सा डायरेक्शन कौन सा होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसी जाती है ना, ऐसी, ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और सही से समझो, ये रीज है, ये ट्रफ है, तो सरफेस एंटी साइक्लोन है, ये सरफेस में जो कलर्ड में जितने सारे सरफेस हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये सुपर जियोस्ट्रॉपिक हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ है तो क्या हो रहा है, सब जियोस्ट्रॉपिक फ्लो है और एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे नहीं चलती ना, ऐसे चलती, तो सुपर जियोस्ट्रॉपिक और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट, द सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर हीट इज एक कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या क्या है अर्थ के इंटीरियर जो हीट होता है उसमें से क्या क्या आएगा, तो रेडियो एक्टिविटी, सोलर विंड्स एंड अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक क्या, decay of radioactive elements in the interior and impact of extraterrestrial objects, ये सही हो सकता है। सोलर विंड कंप्रेशन और वोल्केनिज्म ना, न्यूक्लियर फ्यूजन तो होता ही नहीं, स्टार्स में ही होता है, ये तो गलती हो गई। तो दूसरा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। तो डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जैसे यूरेनियम सोडियम, वो सब डिकेड तो उससे 50% तक इंटरनल हीट आता है, उसके अलावा क्या है, तो बहुत सारे
ठीक है। प्राइमोर्डियल जब हीट है अर्थ का फॉर्मेशन के समय, जैसे कि एरेस एक्सीडेशन एक्सीडेशन जो प्रोसेस था उससे हीट हुआ, उसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स का अर्थ के अर्ली फॉर्मेशन में। ठीक है। एक आयरन कैस्ट्रोप्टाइड है जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस था उसके कारण भी हीट जनरेट होता है, जैसे कि इसको बोलते हैं आयरन कैटास्ट्रोफ जो फिनोमेना था। ठीक है, तो उसका कारण ये आंसर है। ऑप्शन दो सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। उसका यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे हमें करना है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी। सीईसी मतलब कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो हमें यहाँ बतानी है कि इसकी क्या है। तो हिस्टोसोल, ठीक है, तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या था, मेजर करता है सॉइल की एबिलिटी टू होल्ड पॉजिटिव चार्ज, कटायन को कितना होल्ड करके रख सकता है वो है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो हिस्टोसोल का क्या होता है, हिस्टोसोल का होता है 110 से 170। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है हिस्टोसोल में, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा सीसी होता है, हाई सीसी होता है, मतलब कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होता है हिस्टोसोल का, इस सब में से सबसे ज्यादा है। उसके बाद है वर्टिसोल। वर्टिसोल में, ठीक है, वो भी क्लीवेज डोमिनेंट है। ठीक है, इसका भी होगा, इसका 33 से 57, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मतलब रेंज है। एंडीसोल्स का 13 टू 49। ठीक है, ये वोल्केनिक सॉइल है। उसके बाद है स्पोडोसोल्स। ठीक है, स्पोडोसोल्स का, ये बहुत ही एसिडिक फॉरेस्ट सॉइल होता है स्पोडोसोल्स। ठीक है, स्पोडोसोल्स बहुत ही एसिडिक सॉइल्स होते हैं, इसमें सीएसी बहुत ही कम होगा क्योंकि इसमें लोअर क्ले कंटेंट भी होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 A1 B1 B2 C3 D4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये सब डिटेल्स ये है, ये दिया हुआ कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, यूएसडीए सोयल ऑर्डर्स का दिया हुआ है, तो एक बार ये देख लेंगे। ठीक है, और भी मैं दे दूंगा इंडियन स्टार्स का भी, वो जब पीडीएफ अपलोड करेंगे ना क्लास वाइज, तो फिर उसमें रहेगा, क्योंकि इसमें वो कुछ पढ़ाने का नहीं। लॉजिक बताने जाओ तो फिर पूरे बेसिक क्लास लेनी पड़ेगी बहुत सारी, इससे बेटर कि इसको देख लें, समय ज़्यादा ना बिताएं इसमें। उसके बाद है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ कैल्साइट, ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्रैवर्टाइन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिवाइन, इसको बोलते हैं हेमाटाइट। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थोक्लेज है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं काओलाइनिट। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ क्वार्ट्ज बोलते हैं साट साट। ये उसके डिटेल्स है। ठीक है, ये लाइमस्टोन क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिवाइन में क्या होता है, विदरिंग इवेंट्स के समय। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑर्थोक्लेज का होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज का होता है, क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर सर्कुलेशन स्टेज टू प्रोड्यूस एरी एरिया कहाँ पे करता है, वो 30 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, क्यों, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री, यहाँ से हवाएं राइज होती है। ठीक है, ये ट्रेवल करती है, यहाँ डिसेंड करती है, तो डिसेंड करती है। ठीक है, हवाएं, और यहाँ से भी आती है हवा, यहाँ पे डिसेंड करती है। तो ये जो रीजन है पूरा, यहाँ पे हवा डिसेंड करती है, तो डिसेंड करने वाली हवा में क्या होता है, मॉइस्चर कुछ रहता नहीं है। ठीक है, और ये हाई प्रेशर क्रिएट करती है, तो यहाँ पे एकदम क्लियर स्काई होगा, बारिश वारिश होगा नहीं, इस कारण से वहाँ पे एरिड एरिया रहता है। नेक्स्ट, इसलिए मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो देखते हैं, सहारा है, कलारी है, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, कहीं भी, उधर मोजावे है, मुआवे है, ठीक है, वो सब डेजर्ट कहाँ पे है, अपने यहाँ थार है, वो सब 30 डिग्री लैटिट्यूड पे के आसपास ही है, ऊपर नीचे है, उसी पे है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है जो दिखा रहा था, यहाँ से आते हैं राइज हुए, यहाँ पे सब डिसेंड करते हैं।
यहाँ भी डिसेंड करेगा, तो ये जो जोन हो जाता है पूरा, ठीक है, ये पूरा हाई हाई, सॉरी, ये पूरा जो जोन हो जाता है ये पूरा हाई प्रेशर हो जाता है, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ भी सब डिजर्ट होते हैं मोहावे, ये कैलिफोर्निया के साइड जो सब डिजर्ट है, फिर यहाँ पे सहारा, ये सब, फिर अपने आप ये अरेबियन डिजर्ट, फिर थार डिजर्ट, ये सब इसी रीजन में। और यहाँ भी 30 डिग्री जो होता है सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम डिजर्ट यही होता है। उसके बाद उसको मिनरल को सिलिकेट स्ट्रक्चर से मैच करना है। तो देखिए ये सवाल इस तरह के सवाल है ना, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, ये बहुत कम लोग को ही आएंगे, ठीक है। तो हमें इस चक्कर में अपना समय नहीं बर्बाद करना है कि हाँ नहीं इसी को बैठ कर रटेंगे, या फिर एग्जाम में आ गया तो पहले इसी को बैठ कर एकदम दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, भले 5 मिनट चाहिए, नहीं, समय कम होता है हमारे पास, तो स्मार्टली याद करेंगे, आता है तो ठीक है, रटने को टाइम मिलकर रट लेंगे, आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो ऑगाइट का इसमें क्या है ऑप्शन, सिंगल चेन होता है, ठीक है। हॉर्नब्लेंड में क्या होता है, हॉर्नब्लेंड में डबल चेन होता है। बायोटाइट में क्या होता है, सीट होता है। और क्वार्ट्ज क्या, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज में 3 डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी कारण से बहुत ज्यादा वो रिजिड होता है। चलते हैं next। टिपिकल बसाल्ट में 50% क्या होता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2, ठीक है। जैसे कि इसका एक लिस्ट होता है, याद रख सकते हैं, SiO2 भी 50% हो गया। उसके बाद इसमें अल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो 14 to 16% होता है। उसके बाद इसमें होता है, मेजर में देखा जाए तो आयरन ऑक्साइड भी होता है, तो वो हो जाएगा 10 से 12% के आसपास। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है 9 to 11%। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है, तो 5 to 8% बसाल्ट में, दूसरी है ना। उसके बाद सोडियम ऑक्साइड भी होता है 2 से 3%। उसके बाद इसमें पोटेशियम ऑक्साइड भी होता है 0.5 से 1%। तो ये सब लगभग मेजर होते हैं, जो सबसे कम क्या आता है बोल देंगे, आ गया सवाल के सामने पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब बसाल्ट एक मेजर रॉक है, ठीक है, इसलिए इसलिए इससे इतने सारे सवाल आते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेल। रीजनल मेटामॉर्फोसिस पूछा है, तो रीजनल मेटामॉर्फोसिस क्या हो जाएगा पहले, ठीक है। तो पहले लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, फ्लैट। उसके बाद फिलाइट बनेगा, मीडियम, फ्लूइड से मीडियम, फिर मीडियम ग्रेड का आ गया सिस्ट, फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ACBD, ठीक है। ये हमारा पहले सिलेक्ट बनेगा, सेल सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिलाइट बनता है यहीं पे, फिर सिस्ट निस, और बहुत ज्यादा रहा तो मिग्माटाइट भी बन जाएगा, हाई ग्रेड। ये जो ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहाँ होंगे, नॉर्थ में होंगे, तो A2। साउथ वेस्ट B3, A2 B3, हाँ आ गया, A2 से भी आ जाता, ठीक है। डोल्डन क्या हो गया, तो नियर इक्वेटर पता है। प्रिवेलिंग विंड्स क्या है, वेस्टर्ली, तो 30 से 60 नॉर्थ, ठीक है। आई थिंक वी आर डन। ये प्रिवेलिंग विंड्स है, ये साउथ की प्रिवेलिंग विंड्स है, तो 30 से 60 जा रही, ये हमारा डोल्ड्रम हो गया इक्वेटर के पास, ये हमारा साउथ ट्रेड विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। डिटेल्स थोड़ा वो दिए हुए ये, अब चलते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर डन, डन विथ डन विथ PYQs ऑफ यूनिट 4। नेक्स्ट हम, ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो एटमोसफेयर वाला लेक्चर है उसको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो एटमोसफेयर वाला कोर्स है वो कंप्लीट कर लें बीच में, क्योंकि अच्छा हुआ है ड्यू टू माई हेल्थ रीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा,
तो एनर्जी और इन्वायरमेंट है यूनिट 5। ठीक है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के हिसाब से। एनर्जी एनवायरमेंट, सॉरी नॉट इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड इसमें बहुत सारे जैसे कि आ जाते हैं सोलर रेडिएशन का कि कितना भाई एनर्जी आउटपुट होगा, ये कैलकुलेट कीजिए, कैलोरी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, या फिर विंड पावर जनरेट हो रहा है कितना, वो टाइड एनर्जी कितना होगा, इस तरह के चीजें इसमें पढ़ना है। फिर बायोमास का मेथड है, बायो न्यूक्लियर एनर्जी का है, फिशन फ्यूजन पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे अगले जल्द से जल्द इसको भी कंप्लीट करके आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत बड़ा नहीं है, बट है अपने आप में बड़ा। कहने को छोटा है लेकिन है अपने आप में बड़ा। इसके बाद फिर हम पॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में फिर चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम अपना जो लेजिस्लेशन है, असेसमेंट है, उसमें चले जाएंगे। फिर स्टैट्स हो गया और फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी हम टॉपिक के साथ ही डिस्कस करते जा रहे हैं। आई डोंट थिंक उसके लिए कुछ खास बहुत सवाल बचेंगे, बहुत ही अलग सा पूछे होंगे। ठीक है, अब किसी प्रोजेक्ट पे पूछे होंगे जो सिलेबस में मेंशन है, तो ही उसको हम लेंगे। ठीक है, तो मान के चले कि हम ऑलमोस्ट मिडवे हैं। ठीक है, तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल हो कंप्लीट कर दें। और बाकी वर्किंग आई एम वर्किंग ऑन दो नोट्स। ठीक है, तो वो नोट्स जैसे कंप्लीट होगा। और यूनिट 1 का पीपीटी मैंने पीवाई 2 का अपलोड कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम में जाके सर्च करना है स्मार्ट PRAP नेट, तो ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पे डिटेल्स उसमें मैंने अपलोड कर दिया है यूनिट 1 का पीवाई को। यूनिट 2 का भी कर दूंगा जल्दी, यूनिट 2, क्योंकि भी मेरे काम की तो है नहीं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि उसको बचा के मैं कुछ फायदे कमाऊंगा, बस ये है कि उसमें एक दो मिस्टेक्स हैं जो रेक्टिफाई करनी है, थोड़ी अरेंज करने हैं, और फिर उसमें हम कर देंगे। तो अगर आपको अब तक सही लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करें। ठीक है, ये हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब करें, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, लाइक कमेंट से रीच बढ़ेगी थोड़ी, तो करें भाई अगर आपको सही लग रहा है तो। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, और फॉर्म भर दीजिएगा टाइम से। और वेट मत कीजिएगा कि स्टैंड करे, डेट एंट्री है, क्या पता नहीं करे तो। ठीक है, तो फिर टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बी इन प्रेजेंट। ठीक है, नर्वस नहीं होना है। ओके, बाय, टेक केयर।